Good morning, students. In our first class, we saw the first part of the chapter, the best Christmas present. And now, we will see part 2. But before start to listen, we revise first part. So in first part, we saw that the writer of our lesson found a roll top desk from a junk shop, and he also found a secret letter from the secret drawer of the roll top desk. And we know that this letter was written by Jim McPherson to his wife, Mrs. Jim McPherson. Now, in this part, we will discuss about letter. We will read, we will understand about letter. So, now we will start our lesson. Students, जो सेकंड पार्ट है वहां पर हम जो लेटर राइटर को मिला वही लेटर हम रीड करने जा रहे हैं और उसको समझते हैं। डियरेस्ट कॉनी, जिम McPherson ने अपने वाइफ कॉनी को एड्रेस करता हुआ लेटर लिखा है। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेंड। इट मीन्स द राइटर ऑफ द लेटर मीन्स जिम McPherson said to his wife that I write this letter with a much happier frame means feelings of mine. Because why he was happy? Because something wonderful has just happened. Because with Jim McPherson something was happened and it was so wonderful that the writer of the letter, Miss Jim McPherson, tells that I must tell you about at once. Means ऐसा कुछ हुआ था, wonderful things, events कि जो जिम McPherson अपनी वाइफ के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए वो लेटर लिखते हैं। We were all standing to in our trenches yesterday morning. Students, standing to, here you can see the meaning of standing to means taking up position. Trenches means long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. After seeing these two words meanings, we can understand that Jim McPherson was in war situation, and so from very far away he wrote a letter to his wife, the event which had happened with him. So Jim McPherson said that we were all standing to in our trenches. Trenches means long deep ditches where soldiers hide from the enemy. Yesterday morning, Christmas morning. And that was Christmas morning. It was a crisp and quiet all about. And it was a Christmas morning, and so all around it was a very quiet place. As beautiful a morning as I have ever seen. जिम McPherson यहाँ पर कहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी। As cold and frosty as a Christmas morning should be. और इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी वो, इतनी कोल्ड मॉर्निंग थी कि जैसे एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। जिम McPherson said to his wife that if we begin to that, then I should like to be able to tell you. अगर जो हुआ उसकी शुरुआत हमने की होगी तो मुझे वो आपको कहने में बहुत ही अच्छा लगता है। बट द ट्रूथ, लेकिन सच ये था कि आई एम ashamed to say, मुझे वो कहने में ऐसे फील हो रहा है
बिकॉज इज दैट फ्रेज बिगिनिंग, क्योंकि ये जो भी हुआ उसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रेज ने की थी। फ्रेज मीन्स हियर अ नेम फॉर अ German soldiers. Praise is a common German soldiers names. So जो भी इवेंट्स हुई जिम मैकफर्सन के साथ, वो उनकी शुरुआत किसने की थी? तो प्रेज ने की थी, मीन्स के जर्मन सोल्जर्स ने की थी। एंड सो जिम मैकफर्सन felt ashamed to say to his wife, first someone saw a white flag waving from the trenches opposite sides, means enemy side से someone saw a white flag waving from the trenches. कोई opposite soldier white flags wave कर रहा था, उनको हमारे में से किसी ने देखा। Then they were calling out to us from across no man's lands. After waving the flags, they were calling out to us from the no man's land. No man's land means ऐसी प्लेस कि जहां पर आमने सामने दोनों एनिमीज कंट्रीज के सोल्जर्स हैं और बीच में ऐसी जगह कि जहां पर कोई भी पर्सन की एंट्री अलाउड नहीं होती, ऐसी प्लेस मीन्स नो मैन लैंड्स। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। फर्स्ट राइटर ने ये कहा कि सबसे पहले कोई जर्मन सोल्जर ने फ्लैग वेव किया। आफ्टर इट ही कॉल्स आउट टू द जिम मैकफर्सन एंड हिज आर्मीज, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी means a common English name used here refers to British soldier. Tommy means British soldiers. It means, students, Jim Macpherson was one of the British soldiers. So one of from German soldier called Happy Christmas to Tommy. Tommy means English, means British soldiers. Happy Christmas when we had got over the surprise. Some of us shouted back same to you. That was all things like one surprise. एक ऐसी चीज थी, ऐसी इवेंट थी कि जैसे कि सरप्राइज था, क्योंकि it was the time of war and in the time of war to wish a happy Christmas it is as one surprise. So Jim Macpherson tells us and also recites that it was like a surprise and some of us shouted back same to you. और हमारे में से भी किसी ने ऐसा रिप्लाई किया same to you, please, same to you. Though that would be that, I thought that would be that. Writer Jim Macpherson thought that would be that means बस इतना ही, फिर इतना अब इनफ था, फिनिश हो गया। We all do, और ऐसा थिंकिंग हम सब ने किया। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. लेकिन उससे आगे भी कुछ हुआ कि जर्मन में से कोई भी एक और सोल्जर्स अपना ग्रेट कोट पहनकर व्हाइट फ्लैग फिर से वेव करने लगा। Don't shoot flags, someone shouted. और उसमें से किसी ने साउंड किया Don't shoot flags. Flags means boys. And no one did. और किसी ने शूट नहीं किया। Then there was another piece up. उसके बाद दूसरा एक जर्मन सोल्जर्स खड़ा हुआ on the parapet. Parapet is also one verse related to the ditches which they use to hide himself from the enemy. And another, keep your hands down. I told the man it is a trick, but it was not. तब मुझे ऐसा लगा नहीं, जिम मैकफर्सन को ऐसा लगा कि ये कोई ट्रिक है जो एक अनदर आर्मी एनिमी के ऊपर की जा रही है, लेकिन रियली इट वाज नॉट दैट, वो ऐसा कुछ नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. After it, कोई एक जर्मन फिर से अपने हाथों में बॉटल वेव कर रहा था।
ओवर हिज हेड, अपने सर पर से। इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहा था कि इट इज द क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव सैनेप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। यस, सैनेप मीन्स British drink and sausage means meat of animals, and they want to permission to meet themselves. By this time there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. और आफ्टर इट हमने देखा कि उसमें से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो हमारे सामने आ रहे थे नो मैन लैंड की तरफ। और नॉट राइफल बिटवीन देम, और उनके पास में कोई राइफल्स भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और वो जो सब जर्मन सोल्जर्स आ रहे थे उसमें सबसे पहले कौन था? लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम का एक जर्मन सोल्जर्स था। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, और उसने साउंड किया कम ऑन लेट्स कम, व्हाट आर वी वेटिंग, हम किसकी वेट कर रहे हैं। And then there was no stopping them, और फिर उनको कोई स्टॉप कर सकता नहीं था। I was the officer, मैं ऑफिसर था। I should have stopped them there and then, मुझे उन लोगों को वहां और वही टाइम पर स्टॉप करना चाहिए था। I was the officer, I should have stopped them there and then, मुझे, मैं ऑफिसर था, मुझे उन लोगों को वहां ही स्टॉप और वही टाइम पर स्टॉप करना चाहिए था। I suppose, मैं ऐसा सोचता था, but the truth is that it never even occurred to me, लेकिन ट्रूथ सब ये था कि मेरे माइंड में ऐसा कभी भी आया ही नहीं। All along their line and hours, I could see men walking slowly towards one another, और जो वो लैंड था, नोमैन लैंड था, वहां पर मैं ओनली मेल्स, जर्मन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर को एक दूसरे के साथ मिलता हुआ देख सकता था। ग्रे कॉर्ड्स, खाकी कॉर्ड्स मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कॉर्ड्स एंड खाकी कॉर्ड्स, ग्रे कॉर्ड्स मीन्स जर्मन सोल्जर्स एंड खाकी कॉर्ड्स मीन्स ब्रिटिश सोल्जर्स, they are meeting in the middle in the no man lands, and I was one of them, और मैं भी एक उसमें था। I was part of this, मैं भी एक उन लोगों का हिस्सा था। In the middle of the war, we were making peace, and during the time of war, we are trying to make a peace. Now, in next paragraph, you cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of this officer. Here, Jim Nicholson said to his wife that you cannot imagine. Connie को वो कहता है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकोगी my feelings, मेरी जो फीलिंग्स थी जब वो मेरे आंखों में, वो ब्रिज ऑफिसर ने, मीन्स हैंस वुल्फ ने मेरे आंखों में देखा, तब की जो फीलिंग है वो तो इमेजिन भी नहीं कर पाओगी। Who approached me, hand outstretched up, hands full, he said, gripping my hands warmly and holding it. जो मेरे सामने आया और उसने अपने हैंड को आउटस्ट्रेच मींस स्प्रेड किया और फिर मेरे हाथों को अपने हाथों में वार्मली, अच्छे से लविंगली उनको पकड़कर होल्डिंग करते हुए उसने बताया कि आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, मैं डुसेल्डॉर्फ में से हूँ। आई प्ले द सेलो, एक सेलो प्लेयर हूँ मैं। इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मीन्स ग्रुप परफॉर्मेंस, एंड ही आल्सो विश हैप्पी क्रिसमस, और वो हेल्पफुल जिम मैकफर्सन को विश भी करता है क्रिसमस की। It means in this paragraph, Hans Wolf gave introduction to himself to Jim Macpherson. Now he replied, Captain Jim Macpherson, I replied. Means अब Jim Macpherson भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि I
Also, I am the Captain Jim McPherson and a happy Christmas to you. He also wished happy Christmas and he said that I am a school teacher from Dorset. मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्जेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड का एक पार्ट में एक स्कूल है, इसका मैं स्कूल टीचर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि दोनों अभी वॉर की कंडीशन में एक आर्मी मैन के रूप में है, लेकिन ऑलरेडी उनका जो वो हेल्थ में वो एक सेलो प्लेयर है और एक जिम मैकफरसन वो एक टीचर है। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि अगर वो टीचर है, सेलो प्लेयर है, तो फिर वो आर्मी में क्यों है? तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर। एंड जब वर्ल्ड वॉर की कंडीशन है, जब सोल्जर्स इनफ नहीं है, तब ऐसे जो कॉमन पर्सन है उनको भी आर्मी में बुलाया जाता है। डॉर्जेट ही स्माइल, डॉर्जेट का नाम सुन के ही वो हेल्थ को अपने चेहरे पर हास्य आता है। आई नो दिस प्लेस, और वो कहता है कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। We said my Ram Rasan and his excellent success, हमने मेरा जो राम रासन था वो और उसका जो सक्सेस था, जो मीट था, वो हम दोनों ने एक दूसरे के बीच में क्लियर किया। एंड वी टॉक, कॉनी वी टॉक, हाउ वी टॉक, हमने कैसे बातचीत की। He spoke almost perfect English. He was not from Britain, but he know perfect English. He can speak perfect English. But it turned out that he had never set foot in Dorset. लेकिन he turned out means he saw, उसने दिखाया कि वो कभी भी इंग्लैंड में अपना पैर भी नहीं रखा है, फिर भी वो अच्छा इंग्लिश बोल सकता है और इंग्लैंड के बारे में और डॉर्सेट के बारे में इतना सारा बता सकता है। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. अब हमें एक क्वेश्चन होगा कि अगर उसने इंग्लैंड में कभी वो आया नहीं तो फिर ये सब कुछ इंग्लैंड के बारे में, डॉर्सेट के बारे में कैसे पता है उसको? तो यहाँ पर वो क्लियर हुआ है कि he had learned all these things about England from school. उसने इंग्लैंड के बारे में जो भी जाना था वो एक स्कूल में से जाना था, या तो फिर रीडिंग बुक्स, बाय रीडिंग बुक्स। His favorite writer was Thomas Hardy. Thomas Hardy वो उसके फेवरेट राइटर थे। And his favorite book are from the Meddings Club नाम की जो बुक थी वो उसकी फेवरेट बुक थी। So out there is a no man's land. We talk of Bathsheba and Gabriel of and Sergeant Roy. So the area which is no man's land means ऐसा एरिया कि जो दोनों जो आर्मी है उसमें से कोई भी आर्मी मैन वहां पर नहीं जा सकता। ऐसे एरिया में हम दोनों ने, हम ब्रिटिश और जर्मन ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। He had a wife and one son. उसने बताया कि हेल्सवुड पे उनको एक वाइफ और सन भी है। बॉर्न जो 6 मंथ एगो जो सन है उसका जन्म only 6 मंथ पहले हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. जब हम दोनों बातचीत कर रहे थे और तब मैंने एक और पीछे और देखा तो वहां पर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग एटसेट्रा। और ये जो एरिया था, नो मैन लैंड एरिया था, वहां पर एक British soldiers and also German soldiers, they were speaking, smoking, laughing, talking, drinking, eating. These are some things they were doing. Helpful and I said what was left of your wonderful Christmas cake. तूने जो क्रिसमस केक बना कर दी थी उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो भी हम दोनों ने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. और उसने आफ्टर ईटिंग द केक मुझे ये बताया कि इसके ऊपर जो मार्जिपन लगा हुआ था वो अभी तक उसने जो टेस्ट किया हुआ है उसमें सबसे बेस्ट मार्जिपन है। यहाँ पर मार्जिपन मीन्स अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। जो केक के ऊपर वाला जो पार्ट जो केक के ऊपर बनाया जाता है शुगर एग्स में से, वो उसको मार्जिपन कहते हैं। तो वो केक खाने के बाद है तारीफ की मार्जिपन की अभी तक उसने जो टेस्ट किया है उसमें सबसे बेस्ट था। मैं भी एग्री हुआ, सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों
हर बात पर एग्री हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन फिर भी ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट गॉन, और हमने जो क्रिसमस पार्टी की उसके जैसी क्रिसमस पार्टी अभी तक मैंने मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। देन someone after this party, someone, I don't know, मैं नहीं जानता कि कौन, लेकिन someone brought out a football, कोई फुटबॉल लेकर आया। Great gods were dumped in a pile to make a goal post, और हमारे जो सोल्जर्स की जो ग्रेट कोर्स थे उसको एक जगह पर रख दिया टू मेक अ गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट ब्रिग्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और उसके बाद मैं जानता था क्या होने वाला था, जो टॉमी है और जो ब्रिग्स है उसके बीच में एक फुटबॉल मैच होने जा रही थी। एंड सून एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। हेल्पफुल एंड मैं वो मैच को देखते रहे, चीयर करते रहे, क्लैपिंग करते रहे, एंड हमारे जो फीट जो पैर थे उसको हम स्टेपिंग करते रहे टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जितना हो सके उतना हमारे जो सोल्जर्स थे, जो हमारे जो मैन थे, आर्मी मैन थे, उसको उत्साह देने के लिए। देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक ऐसी मोमेंट थी जहां पर मैंने देखा कि हमारे जो ब्रेथ्स, जो एयर था, जो श्वास था, वो एक दूसरे के बीच में मिल रहे थे। He saw it too, उसने भी देखा and smiled. Jim Makerson, he said after a while, थोड़ी देर के बाद वो बोला, I think this is how we should resolve this one. और फुटबॉल मैच जो हो रही थी उसको देखकर हेल्सवर्थ जिम मेकपर्सन को ये दिखाता है कि यही एक तरीका हो सकता है फुटबॉल मैच या तो एनी गेम, इट कैन बी वन वे टू रिजॉल्व द वॉर को रिमूव करने, वॉर को फिनिश करने का एक तरीका हो सकता है फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई फुटबॉल मैच में मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा ऑर्फन नहीं होगा। नो वाइफ बिकम विडो, और कोई भी जो वाइफ होती है वो सी नेवर लॉस्ट एनी हस्बैंड्स। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड यू। लेकिन जो गैप की बात है तो यहाँ पर जिम मेकपर्सन कहता है कि अगर तुम मेरे पर चॉइस रखते हो तो मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वी नो दैट जिम मेकपर्सन वाज फ्रॉम ब्रिटेन एंड वी नो इंग्लैंड जो क्रिकेट का जहाँ पर उद्भव हुआ है तो वो ऑलवेज क्रिकेट का ही प्रेफर करेंगे, और जब जर्मनी की बात है तो वो लोग ज्यादा फुटबॉल प्रेफर करते हैं। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और अगर हम क्रिकेट को चूज करेंगे तो इट इज श्योर, वो श्योर है कि हम ही जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों इस पॉइंट पर हम दोनों हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर साथ में हम गेम को देखने लगे। सैड टू से, लेकिन मुझे बहुत ही सैड फीलिंग्स हो रही है टू से कहने में, कॉनी प्लीज वॉन 2 goals to 1, लेकिन मुझे सैड फीलिंग हो रही है कि जो प्रीस थे वो इस मैच को 2-1 से जीत लिया। बट एज हेल्फोस जेलसली सेड आवर गोल्स वाज बेटर देन दिस, लेकिन बहुत ही उदारता की फीलिंग्स के साथ ये जो हेल्फुल है वो ऐसा कहता है कि अवर गोल मींस टॉमीज गोल्स वाज बेटर देन दिस। जो एनिमीज के गोल्स थे वो उन लोगों के गोल से बहुत ही बेटर थे। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जिम मेकपर्सन, दैट वाज नॉट फेयर, वो प्रॉपर नहीं था, वो सच नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सुन, अब टाइम हो गया था व्हेन द गेम वाज फिनिश, और जब गेम फिनिश हुई द सैनेक्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। जो हमारे पास जो खाने का जो पार्टी बनाने के लिए जो चीज थी, जैसा था सैनेक्स, रम, सॉसेज, वो सारा बहुत ही पहले फिनिश हो चुका था। आई विश हैंस फेयर, मैंने हैंस को अच्छा विश किया एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उसको ये भी विश किया कि मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, ऐसा डिजायर रखता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को फिर से इन शॉर्ट टाइम मिल सको, दैट द फीलिंग्स वुड एंड and we could all go home, or that the fighting would end and we could all go home.
और हम ऐसे भी डिजायर करते हैं, ऐसे भी विश रखते हैं कि वो जो फाइटिंग है, जो वॉर है, वो फिनिश हो जाए और हम सब हमारे घर पे वापस आए। I think that is what every soldier wants on a both side। और मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा जो सोचा वो दोनों आर्मी के सोल्जर से सोचते हैं। हैंसवर्थ से टेक केयर जिम मेकर्स, हैंसवर्थ ने कहा कि टेक केयर जिम मेकर्स, आई सेवन नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। ही सेड दैट कि ही विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, वो कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूल पाएगा। नॉट ओनली मोमेंट बट नॉट जिम पर्सन, जो हैंसवर्थ है वो बताती है वो कभी भी इस मोमेंट को फॉरगेट नहीं करेगा और कभी भी जिम पर्सन को नहीं भूल पाएगा। He saluted and walked away from the story unwillingly, वो सल्यूट करता हुआ वहां से मेरे से अब बहुत ही अनविलिंगली, डिजायर नहीं थी मेरे से दूर होने के लिए, लेकिन फिर भी इसको जाना पड़ा और वहां से निकल रहा है। I felt he turned away just once and then became one of the 100 of Grey Corps men directing back towards their trenches। और फिर मैंने देखा कि वो जब वापस जा रहा था तब केवल एक ही बार उसने वापस देखा और मुझे वेव करता हुआ वो अपने जो सोल्जर्स थे उनमें जाकर मिल गए अपने ट्रेंचेस पर। That night back in our dugouts, ये जो बात थी वो दिन की बात थी, लेकिन नाउ इन नाइट, that night back in our dugouts, dugout means a shelter for soldiers made by digging holes in the grounds and covering it। ऐसा एरिया जहां पर सोल्जर्स अपने आप को अपने एनिमीज से छुपाने के लिए ऐसी जगह बनाते, ऐसे हाल बनाते, डिग आउट करते हैं, इट मींस डगआउट्स। तो नाइट पर हमारे जो डग आउट से वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल्स, तब हमने उन लोगों को कैरोल्स गाते हुए सुना। कैरोल्स मींस अ सॉन्ग विद फुल ऑफ जॉय एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छी तरह से गाने गा रहे थे। इट वाज सो स्टिल नाइट मींस साइलेंट, वो एक बहुत ही अच्छी साइलेंट नाइट थी। आवर वॉइस गेव देम अ सिंग, our voice gave them a rushing chorus of violent efforts to watch। हमारे वॉइस में भी हमारे तरफ से भी उन लोगों को सपोर्ट किया और उनके बदले में वायलेंस एफर्ट्स वॉच के जो एक स्टोरी थी, जो सेंटिंग था, वो भी उन लोगों को सुनाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ व्हाइल, हम सबने कैरोल्स को, सॉन्ग को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, शेयर किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद हम सब साइलेंट हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। अब ये जो टाइम था, ये जो मोमेंट थी, वो एक ऐसी मोमेंट थी जो बहुत ही पीसफुल थी, बहुत ही गुडविल वाली मोमेंट थी। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एंड दैट मोमेंट आई विल रिस्टोर, आई विल सेव, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये जो मोमेंट थी, उस मोमेंट को मैं नहीं भूल पाऊंगा। Said by Jim Makers। Dearest Connie, by Christmas time next year. Now, at the ending of this part, Jim Makers said to his wife, Dearest Connie, by Christmas time next year। नेक्स्ट ईयर की जो क्रिसमस डे होगा, जो क्रिसमस होगी, वो क्रिसमस पर दिस वॉर विल बी नथिंग, ये जो वॉर अभी चल रहा है वो कुछ होगा नहीं, बट अ डिस्टेंट, लेकिन एक दूर की बात होगी, एंड अ टेरिबल मेमोरी, ओनली सिर्फ एक भयानक मेमोरी के रूप में उसको देखा गया हो सकता है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि आज जो भी हुआ उससे मुझे मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि ये जो वॉर है, नाउ इट विल एंड, इट विल बी एंडेड इन शॉर्ट टाइम। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और हम बहुत ही विश करते हैं, बहुत ही डिजायर है हमें कि हम ये वॉर है वो हो सके, इतना जल्दी फिनिश हो सके, और पीस की हमें बहुत ही विश है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम एक दूसरे को इन शॉर्ट टाइम मिल सकते हैं। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं आई एम श्योर ऑफ
इट, यू आर लर्निंग जिम। और लास्ट में लेटर फिनिश करता हुआ जिम अपने वाइफ को ये भी कहता है कि इन शॉर्ट टाइम वी विल कम बैक एंड ऑन नेक्स्ट क्रिसमस I am with you. Now we will see comparison check. First, who had written the letter to whom and when? So the letter was written by Jim Maker to his wife on 26th December 1914. Why was the letter written? What was the wonderful things that had happened now? The letter was written to express his feelings, his views, to tell about wonderful things that Christmas party which happened between Tommy and Chris. What jobs did Hansworth and Jim McPherson have when they were not soldiers? Hansworth was a cello player and Jim McPherson was a school teacher. Had Hansworth ever been to Dorset? Why did he say he knew it? No. Hansworth never been to Dorset because he said he knew it, because he know all things about England and Dorset from school and by reading books. Do you think Jim McPherson come back from the war? How do you know this? Yes, we thought Jim McPherson came back from the war, and we thought that, we know that because Jim McPherson thought that now this war will end in short time, and so he will go his home back. So students, in this part we saw that Jim McPherson wrote a letter to his wife to express feelings about Christmas party which was held between two enemies, British and German soldiers. And at the end of letter, he also wished that he will go back home next. And now in third part, we will see what will the writer of our lesson